आप शेयर कर दो। अरे पीपीटी कैसे मैं शेयर कर पाऊंगी? Where am I supposed to go for that? How can I open my PPT? Ma'am, click on share button. Click on share button. शेयर भी कीजिए आप। Yes. I got it. I got it. हाँ. Yes. Now you guys can see my PPT. Yes, yes. Oh, great. जी हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। Okay, I think I'll start. How many more to come? They will come. You can start because recording is in progress. हाँ. So we'll wait for 2 minutes and we'll start. Okay. 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 No Well, problem. you can do one thing. I'm audible, Go to the right? yeah. Go to slideshow. Let's start from beginning. मैडम ये होम डिजाइन एनिमेशन के बाद में स्लाइड शो दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये भी दिखेगा। होम इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन स्लाइड शो है, तो फिर आपकी स्लाइड आना शुरू हो जाएगी। हुमैरा मैडम शायद आपका वीडियो ऑफ है। लेफ्ट हो गए। सर आपने डिसेबल कर दिया तो स्क्रीन नहीं दिखाई। जी अभी किया। नाउ शेयर द स्क्रीन। ठीक है सर। Okay, I think I'll start, sir. How many participants are there? 5 participants I can see. They will gradually join, inshallah. So let me first introduce Okay, no issues. to all the audience. Yeah. Assalamu alaikum. Yes, yes. Today we have Miss Humaira Sheikh with us. She is an eminent career and psychological counselor. Did her MA in psychology as well as MA in English. Currently, she is working as an education counselor as MESCO, and she was one of my colleagues when I was in MESCO. And I used to see her working with the children, economical issues, and dealing with them. And I find most suitable speaker for this particular topic.
Therefore, I invited Miss Humaira Sheikh for this, and she accepted it. Though it's very difficult for her to, from home, she's not that much tech savvy, and it's very difficult to join for a lady, working lady from the house. Thank you very much, ma'am, for joining My us. pleasure. My I would pleasure. like to, give, please, ma'am, continue. Yes, yes. Thank you so much, Ehsan sir, for such a wonderful introduction. I'm sure that all the participants can hear me. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So as sir said, myself, Humaira Sheikh, I am a counselor in an organization called as MESCO. I have a background of psychology. So basically, I'm a psychologist. And today we are here to discuss on two topics. First is basically related to the fields which are there in the field of arts, and the second thing which we are going to see is the streams which are there in the field of psychology. Okay, so two topics we are going to combine. But before I start the topic, I would like to have a quick introduction of all the participants. So if the participants can, just introduce themselves in a very short way, so I'll get an idea what kind of crowd I'm talking to. Please, you can introduce one by one. Shall I start with Islam sir? Yes, ma'am. Assalamu Or alaikum. anybody for that matter? Yes. Assalamu alaikum, ma'am. Alaikum salam. I'm Khairul Islam from Warangal. Okay. Actually, now I'm working in a pharmaceutical company. Great, Also, great. yes, ma'am. Also, my motto is so vast to help the entire community. Thus, I joined this. So, it's so the same purpose I will join here. And one of the important things that Language is not- Ehsan Sayyed is my childhood friend also. Okay, okay. Excellent, sir. Thank you, Islam sir. We have one more participant with us. Nazia ma'am. Yes, Nazia ma'am. Assalamualaikum, ma'am. I'm Nazia Sohail Ramdul, biology teacher at Christian English High School and Junior College, MESCO. Okay, okay. So we have a person from pharmaceutical company. We have a biology teacher with us. Who's next? We have Raja sir with us. Raja sir? Hello. Yes. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Raja Myself sir. Mohammad Raza. I am Okay. a chemistry teacher currently working in a Bansal classes Akola as a chemistry faculty. Hello. Okay, okay. Ji, thank you. Okay, so next, who's there with us? So we have Raza sir, Nazia ma'am, Islam sir. Anybody else? Actually, Which I'm ma'am, missing on? we have total 18 participants, three but are there. right now we have only four in this Acha. lecture. So we have provision to share the Okay, no recording problem, no problem. after each session. Okay, please continue. No problem, sir. Okay. So a very good evening to one and all present. We are going to have the session on fields related to arts, and the second part will be the fields related to things. The first slide, which you can see, what are the basic options which are available after 10th standard. Okay. Now 10th standard, you can see 3 options generally available for all the students. The first one is called as arts. The second one which we have with us is commerce, and then we have science. Okay, so these are the 3 basic fields which are available for each and every student. But when we talk about career, besides understanding the fields, we should also understand the intelligence and the interest of the child. Okay, once we understand the interest and intelligence of the child, accordingly we can tell the career to that particular person. Okay, so along with interest, intelligence, and I rather suggest one more thing over here, you should also check the personality of the person. So if these 3 things are there in combination, then automatically the chances of success in that particular career becomes very, very possible, very much possible it becomes. Okay, so the first thing which you can see in the slide after this is
whenever a person talks about career, you take certain things into consideration. You need to understand it requires education. Then you have something called as vision. You need to understand the vision of the child. You need to see the skills which the child possesses. Then we need to understand the interest. We also need to understand the value system of the child. And last but not the least, we also need to see the goals which the person is having with him or her. Okay. So apart from the three things which I said, the three things which I mentioned earlier was intelligence, interest, and personality. And along with this, all these things make a person successful in that particular career. So education makes a person successful in a career, right vision, skills, interest, values, and goals. Okay. So before I move on, can all of you hear me clearly? And also you guys can see the slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Any one of Yes, ma'am. There is a background sound of a Okay. fan. So now what will, okay. Now we'll move on to All the participants are requested specialization in to the mute themselves. Right? arts. All the other Anybody is not participants. able to listen to me, just let me know. Yes, ma'am. Please continue. For me, right? Yes, ma'am. Please continue. Now you can see the fields which are available in the fields of arts. Now the specialization which I have mentioned over here, you can see the topics which I have mentioned over here. A person who's in arts needs to select the course of arts after his or her 10th standard. Okay. Once the child gets into 10th standard, he needs to complete first 2 years of his education, which we call junior college in arts only. And in arts, you have subjects like history, economics, psychology. Arts, it's not like science and commerce, where the subjects are basically common to all. Now here the child is having an option subjects which are available in that particular college. Some colleges may have history, may not have economics, may have psychology, may not have logic. So basically you need to see the combination which that college is basically offering. So majority of the colleges which offer subjects like history, logic, philosophy, sociology, different languages, these subjects for sure are available in colleges. Okay. Now next, what are we going to see is the specialization. So first thing is for sure that you need to have junior college in that subject. And after you are done with your junior college, you are going to take admission in graduation. आप 12th करने के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ग्रेजुएशन में. और आर्ट्स की खासियत ऐसे होती है कि आर्ट्स में आपको फाइनल ईयर में या तो 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना होता है या कोई एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना होता है. सो यू बेसिकली हैव डबल ग्रेजुएशन where you have 3 subjects of say history and 3 subjects of English. Or if the college permits, you can have all 6 subjects in the field of history only. Okay. So a lot of time the specialization varies from college to college. Not all colleges offer all specialization. Clear? ये बात आप कि हर स्पेशलाइजेशन छोटे मोटे फील्ड्स है आर्ट्स में. सबसे पहला जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं हम सब उससे रिलेट करता है वो होता है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. ओके. साइकोलॉजिस्ट बन सकता है एक बंदा अगर आर्ट्स की फील्ड में है. तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 11th 12th में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है. एंड देन इन फाइनल ईयर दैट इज बीए, यू कैन सी द स्लाइड ओवर हियर. डिग्री कोर्स में आपको बीए लेना पड़ेगा. सॉरी, डिग्री कोर्स में आपको साइकोलॉजी लेना पड़ेगा जिसको अपन बीए बोलते हैं. आफ्टर बीए इन साइकोलॉजी यू नीड टू डू एमए इन साइकोलॉजी. And if you have further interest, you can also do PhD in psychology. Then you will be basically called as a psychologist. Psychology का जो field है अपन और details में लेंगे. उसके बाद हम जो है वो psychology की field में post graduation
डिप्लोमा भी कर सकते हैं जिसको अपन PGD बोलते हैं, एंड देन वी आल्सो हैव सर्टिफिकेट कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में पढ़कर बंदा कहाँ कहाँ काम कर सकता है? That person can work in schools, NGOs, hospitals, private clinic. He can become or she can become a professor, teacher, etc. तो बहुत वास्ट फील्ड है, अपन इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे आगे। सेकेंड स्पेशलाइजेशन जो है वो आर्ट्स की फील्ड में है, लैंग्वेजेस में। अगर एक कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, कोई एक लिटरेचर में आप जो है वो पूरे 6 पेपर्स कर सकते हैं, और आप जो है वो BA 3 साल का आपका होगा इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड MA होगा 2 साल का। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर कोर्स आफ्टर 12th अगर आप पकड़ते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन है, और आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली लाइक 5 years। ओके, और अगर आप किसी भी ये जो मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है इसमें अगर आपने BA किया तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप ट्रांसलेटर, टीचर, फ्रीलांस राइटर वगैरह जो ये बन सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग सब्जेक्ट भी ऑफर करते हैं। ये तो मैंने मोटे मोटे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। आजकल कॉलेजेस में जो है वो फ्रेंच में लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं, उसके अलावा फ्रेंच के अलावा और भी अलग अलग लैंग्वेजेस जिसमें जो है वो स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्पेशलाइजेशन होता है जो बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स। ओके, आप BA कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, आप MA कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स करने के बाद आप किसी भी बैंक में, कॉर्पोरेट फर्म्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सोशियोलॉजी में बहुत सारे बच्चे BA करते हैं। BA सोशियोलॉजी में आप BA भी कर सकते हैं, MA इन सोशियोलॉजी करते हैं। 10th के बाद आपका टोटल 5 साल का आर्ट्स का कोर्स होता है, 2 साल 12th के पकड़ते हैं अपन, और 3 साल जो है वो ग्रेजुएशन के। उसके अगर आप आगे जाना चाहे तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, वो 2 साल का होता है। ओके, और इसका स्कोप है कि आप ह्यूमन राइट्स में काम कर सकते हैं, आप सोशल वर्क कर सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगेन बंदा BA MA कर सकता है, बैचलर्स और मास्टर्स कर सकता है। इसमें जो है वो बंदा सिविल सर्विसेज में काम कर सकता है वगैरह। ओके, BA में जो है वो जो बच्चा 12th करना चाहता है, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज में भी जाते हैं, और बिजनेस मेजर स्पेशलाइजेशन जो बच्चे करते हैं 12th आर्ट्स के बाद वो है फाइनेंस में, मार्केटिंग में और HR में। ओके, और इसके बाद आराम से आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी 3 साल का कोर्स है 12th आर्ट्स के बाद। ये BMS एक ऐसा कोर्स है जो आप किसी भी फील्ड के बाद कर सकते हैं, आपको सिर्फ आर्ट जरूरी नहीं है, आप साइंस के बाद भी कर सकते हैं, आप कॉमर्स के बाद भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस BMS एक और कोर्स आता है, वो होता है BB एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है वो है बैचलर्स इन मास मीडिया। ओके, मास मीडिया भी होता है, बहुत सारे लोग जो है वो बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी करते हैं। इसके अंदर 2 मोटी मोटी फील्ड है, जर्नलिज्म की और एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो है वो बहुत सारे बंदे जो है वो जर्नलिस्ट बनते हैं, प्रिंट मीडिया में या नॉन प्रिंट मीडिया में, विजुअल मीडिया में भी ये लोग काम कर सकते हैं। ये भी कोर्स है 10th के बाद आपको 2 साल का 12th होता है, 12th के बाद आपका 3 साल का बैचलर्स होगा, और उसके बाद आपका जो है वो 2 साल का मास्टर्स होगा। अगेन जिन बच्चों का आर्ट्स होता है वो लोग मास मीडिया में काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। मास मीडिया भी एक जनरल फील्ड है, साइंस के बाद भी आप जा सकते हैं, कॉमर्स के बाद भी आप जा सकते हैं। मैं सुनाई दे रही हूँ सब? यास्मीन, आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। मैम आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, बहुत इंटरप्शन के साथ जो है वो सुनाई दे रहा है। नाजिया मैम,
मैम आई थिंक ना नेटवर्क इशू है मेरी, शायद मेरे साइड से आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ मुझे रही है लगता है मेरी कि आवाज? नो मैम, सेम इधर भी शायद है, सेम वैसे ही शायद आवाज मैडम सेम का इधर इश्यू भी आ रहा है है। सबका। बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आ रही है। हाँ बहुत इंटरप्शन आ रही है। कि मेरी तरफ से मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हियर यू क्लियरली? अभी आ आ रही रही है है, मैडम? अभी आ रही है। नाउ यू कैन हियर मी क्लियरली? यस। ठीक है। Yes, ma'am. ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है मल्टीमीडिया का, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो टू वे कम्युनिकेशन हमें समझ में नहीं आता है कि बाबा सामने वाले बंदे को सुनाई दे रहा है। मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। स्लाइड्स जी, मैम। दिखाई दे रही है, राइट? ओके, तो मे बी व्हेन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम उस बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा फील्ड है जो है वो फील्ड आर्ट्स के बच्चों के लिए है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो है सोशल वर्क का। ओके, दो चीजें हैं सोशल वर्क में। आप जो है वो बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं और आप मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क भी कर सकते हैं। ओके, ये सुनाई दे रहा है आपको, बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क? जी सुनाई दिया अब। सुनाई दे रहा है ना मैम? ठीक है, मैं जो है, मुझे आप लोगों की आवाज एकदम क्लियर आ रही है। आई कैन हियर यू गाइस वेरी क्लियरली। नाउ इट्स बेटर? यस। ओके, सोशल 3 साल का बैचलर्स होता है और मास्टर्स होता है 2 साल का। आजकल इसका भी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। आप जो सोशल वर्क करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में, एनजीओज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी उनके सीएसआर के अंडर काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। काफी अच्छा फील्ड है आर्ट्स के बच्चों के लिए सोशल वर्क। ओके, आर्ट्स के बच्चों के लिए मैंने इसके फील्ड बताया, वो क्या था? मास मीडिया बताया मैंने इसके पहले। मास मीडिया के पहले मैंने आपको बताया बिजनेस मैनेजमेंट, उसके पहले मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस, उसके पहले मैंने बताया सोशियोलॉजी, उसके पहले था इकोनॉमिक्स, लैंग्वेजेस है बहुत सारे जिसमें आप बीए कर सकते हैं, साइकोलॉजी। यस। ओके, नाउ इट्स बेटर मैडम? यस यस। ओके, और ये जो मैंने लास्ट के जो बताए हैं, मास मीडिया, सोशल वर्क, इसके लिए कोई आर्ट स्पेसिफिक जरूरी नहीं है। कोई भी बंदा जो साइंस बैकग्राउंड का है या कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो भी ये कोर्स कर सकता है। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग फील्ड। कोरोना में थोड़ा ये फील्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बूम में नहीं था। अगेन इट हैज कम टू बूम, दैट इज कॉल्ड एज होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। ओके, इसमें भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों अवेलेबल है। आर्ट्स के बच्चे इसमें जा सकते हैं। आप जो है वो कोई भी बड़ी कंपनी में, कोई भी बड़े होटल में मैनेजर का, या फिर बैक ऑफिस है या फ्रंट ऑफिस में शेफ का काम कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन ऐसा है 10 साल, 10वीं के बाद जो है आपको 2 साल का कोर्स है 12th का, और उसके बाद आपको 3 साल का कोर्स होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसको अपन बोलते हैं। सोशल वर्क मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों से। उसके बाद अगेन बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर है आर्ट्स के बच्चों के लिए। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इसके अंदर, एलएलबी और एलएलएम। ओके, अब एलएलबी और एलएलएम में आपको 10th करने के बाद 2 साल जो है वो आर्ट्स पढ़ना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, पर इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स होता है। इसको बोलते हैं बैचलर्स ऑफ लीगल साइंस। एलएलबी जिसको अपन जानते हैं लॉ स्टडीज है, स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ लीगल साइंस, जैसे कि मैंने बताया, एंड बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों के लिए जो कन्विंसिंग पावर और कम्युनिकेशन रखते हैं। और जो बच्चे समझ के चलो बीए करते हैं, प्लेन बीए, और उसके बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं लॉ में, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर्स ऑफ लॉ। ओके, इसमें अगेन आप एडवोकेट, एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, आप सिविल लाइन में जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। द लिस्ट इज रियली वेरी ह्यूज, वास्ट है काफी। बहुत कॉमन फील्ड जो है, जो काफी लोग जानते हैं, टीचिंग का फील्ड है। लेकिन जैसे कि आज से 10, 12, 15 साल पहले इतना वेरिएशन नहीं था जितना अभी है। वैसे डीएड वगैरह तो काफी साल से है, लेकिन जो ईसीसीएड को बहुत ज्यादा बूम में लाया गया है। पहले डीएड के बच्चे ही ईसीसीएड के
नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी एक अर्ली चाइल्डहुड केयर का डिप्लोमा आया है जो 12th के बाद बच्चे 2 साल मैम वीडियो रुक गया है आपका, आवाज नहीं आ रही है। मैं शायद होस्ट डिसेबल्ड बता रहा है मुझे। पार्टिसिपेंट्स, इम्तियाज सर। यस मैम, अभी आपकी आवाज आ रही है, वीडियो भी दिखाई भी। हाँ, द थिंग इज दैट, लेकिन मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसे चाह रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एहसान सर, ठीक है। एहसान सर, अभी फिलहाल सर आप होस्ट है, आई कैन सी यू एज होस्ट, तो आपको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा सो दैट आई कैन शो माई स्क्रीन टू अदर्स। इस्लाम सर, आपने मुझे डिसेबल किया हुआ है। यस मैम, मैंने नहीं किया मैम, सर की तरफ से ही है। लेकिन आप होस्ट दिख रहे हैं मुझे, आई कैन सी यू एज होस्ट। आप देख पा रहे हैं सर? लेट मी सी। जी मैम, हाँ मेरे उसमें दिखे, तो आपको कर सकता हूँ मैम मैं इधर से। हाँ प्लीज देखिए ना, अगर आप कर सकते, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन। मुझे यस यहाँ मैम, बता रहा है कि होस्ट। यस मैम, कर दिया आपको। ओके ओके, लेट मी जस्ट ट्राई माई स्क्रीन शेयरिंग अगेन। ओके, अब ये मैंने एक स्पेसिफिक डाली है, MBA बोल के। काफी लोग जानते होंगे MBA, ये फील्ड मास्टर्स है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारा महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में इसको स्पेसिफिकली MMS भी बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, और ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो सकती है, कोई भी बंदा कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का बंदा कर सकता है। और MMS या MBA करने के बाद आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ओके, एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए मैनेजर, जैसा भी वहां का रिक्रूटमेंट हो रहा है उस समय। ओके, एक और अच्छी फील्ड है जो बहुत कम बच्चे परस्यू करते हैं और कम बच्चों को पता भी होती है, ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस। लाइब्रेरी साइंस का जो है वो 3 साल का कोर्स है, और लाइब्रेरी साइंस करने के बाद आप किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरीज होती है, पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, वहां पे एज अ लाइब्रेरियन काम कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है आजकल। बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं 2 साल का। और जिस तरह से टीचिंग के लिए अपने को नेट सेट कंपलसरी है, वैसे लाइब्रेरी के लिए भी नेट सेट कंपलसरी हो गया है आजकल। ओके, तो अगर आप बड़ी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में काम करना चाहते हैं, अच्छे बड़े कॉलेजेस में, एडेड कॉलेजेस में काम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्लियर योर नेट सेट। हेलो, am I audible to all? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं जरा एक क्विक रिकैप लूं आप लोगों के से, कि ताकि मुझे पता चले, बिकॉज यू नो आई गेट वेरी कॉन्शियस, आई somehow think that I'm the only person who's talking and others are just not responding. So if I can see your faces also, अगर आप अपना चेहरा दिखा सके और मुझे बता सके कि अभी आप, अगर हमने समझ के चलो 20 मिनट बात किया है, तो 20 मिनट में आपने क्या इंफॉर्मेशन लिया। यस, यास्मीन मैम, थैंक यू सो मच, आपने ओपन किया अपना कैमरा। Because I still believe that old school of thought. Okay, मैं 2-way communication पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ,
because I have been, lecturer and counselor for 12 years, and from past 6 years I am purely into counseling. So I strongly believe ये दो two-way communication is really very important for any form of communication, whether it's a audio video call or whatever it is. दो two-way communication बहुत जरूरी है. For that matter, audio also. अगर हम ही बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल बाउंसर जाता है. ओके नाजिया मैम, थोड़ा सा रिकैप देंगे कि हमने कहाँ से शुरू किया था. Started with psychology, career in psychology. ओके, साइकोलॉजी के पहले मैंने एक और चीज बताई कि अगर आप करियर सिलेक्ट करना चाहते हैं एज अ टीचर या एज अ जो भी आप जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं और आपके पास कोई बच्चा आता है, तो हम डायरेक्टली उसको आर्ट सजेस्ट करेंगे या उसके पहले थोड़ा सा उससे कुछ बातचीत करके क्या निकलवाएंगे? पॉइंट्स लाइक इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट देखना होगा बच्चे का, देन पर्सनैलिटी आल्सो मैटर्स. हैंग ऑन. स्टूडेंट का विजन क्या है और उसके खुद के गोल्स क्या हैं, वैल्यूज एंड स्किल. परफेक्ट. ओके, बिकॉज ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू सजेस्ट एनी करियर टू एनीबडी. क्योंकि हो क्या रहा है, जो है वो अगर बच्चा किसी एक चीज को लेके इंटेलिजेंस रखता है या इंटरेस्ट रखता है या पर्सनालिटी रखता है और हम उसको कोई दूसरा कोर्स दे देते हैं, then it is really difficult for child to cope up with that. Okay, क्योंकि मैंने देखा है IT के बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनते हुए. ओके, सो जो बंदे का एक एप्टीट्यूड था ही नहीं IT का, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस था, इसलिए वो चीज करते जा रहा. एप्टीट्यूड नहीं था, एप्टीट्यूड था, टैलेंट था, मतलब उसका IT इंजीनियर बनने का, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स में था. तो IT करने के बाद भी वो बंदा क्या बन रहा है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन रहा है. So that is something which is happening. So अगर ये पहले ही लेवल पे आइडेंटिफाई हो गया तो आगे लेवल पे दिक्कतें कम आ जाएंगी. ठीक है, वेरी वेल सेड मैडम. साइकोलॉजी नाजिया मैम ने आपने बताया, यास्मीन मैम ने बताया कि मैंने साइकोलॉजी से स्टार्ट किया, उसके बाद क्या कोर्स लिया था? मैम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं BA एंड MA, जिसमें जर्नल वगैरह, स्टोरी टेलर भी बन सकते हैं. लैंग्वेजेस के बारे में आपने बताया. एक और चीज के हम आजकल न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस भी जो है वो इसके बाद क्या टॉपिक मैम अगेन आई कैन हमने डिस्टर्बेंस है मैम. ओके, ओके, सोशियोलॉजी हमने डिस्कस किया. हमने लॉजिक में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कम बच्चे करते हैं. हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे करते हैं. आजकल फ्रेंच वगैरह जैसे सब्जेक्ट भी मार्केट में आ गए हैं, जिसमें बच्चे जो है वो बड़े बड़े जो IB स्कूल्स है, IG स्कूल्स है, वहाँ पे मराठी ना होते हुए उनको होता है फ्रेंच, उनको होता है जर्मन, तो उसमें भी BA और MA अभी आ गया है. ओके, लेट मी टेल यू दैट. अदर कोर्सेज में अपन आएंगे. जो आर्ट्स का बच्चा, आज ही मेरी एक बच्ची से मुलाकात हुई, जारा नाम की बच्ची थी, एंड दैट गर्ल वाज एक्सट्रीमली गुड इन ड्राइंग. ओके, मतलब लिटरली हूबहू पिक्चर्स अगर हम जैसे देखते हैं ना, अगर वो BTS का कैरेक्टर्स बना रही है या सेलिब्रिटीज का कैरेक्टर बना रही है, तो हूबहू अच्छी पिक्चर्स बना रही है. ओके, अब ये बच्ची 10th में आपके पास आती है, तो आपके पास उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है. आप उसको बोल सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है बेटा, फाइन आर्ट्स में. ओके, मैंने पूरा JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स उसको बताया कि किस तरह से 12th वो किसी भी सब्जेक्ट में कर सकती है. आर्ट्स भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, बट अगेन आर्ट्स इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसको अपने हॉबी को परस्यू करने के लिए टाइम मिलेगा. वो बहुत सारे स्केचेस और पेंटिंग्स वगैरह बना सकती है. ठीक है, उसके अलावा अगेन जो आर्ट से मिलता जुलता फील्ड है, बहुत बच्चे अच्छा करते हैं फैशन डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग के अंदर. ओके, ये मैंने करियर ऑप्शंस रखे हैं, जो वही करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बोलते हैं अपन BA को, फाइन आर्ट्स है, B.Ed एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी है और आगे की स्टडीज के लिए भी है, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास
कम्युनिकेशन, बीए एलएलबी, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली यह मेंशन करने का कोशिश किया है कि ये सारे जो एग्जाम होता है, सीयूईटी इज एन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है, जो नॉर्थ में ज्यादा अवेलेबल है, जैसे कि अगर अपन बोलते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या मुझे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या मुझे जामिया मिलिया में पढ़ना है, या मुझे जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप जो है वो सिर्फ आपको 12th आर्ट्स करके डायरेक्टली जामिया मिलिया में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जो है वो सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, तभी आप नॉर्थ के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बीए या एमए कर सकते हैं। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू ऑल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग चाहे तो इसका ले सकते हैं, पिक ले सकते हैं, मैं आपको चाहे तो बाद में शेयर भी कर देती हूँ ये अगेन। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, इंपॉर्टेंट मैंने एंट्रेंस यहाँ मेंशन किया है, सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अपन बोल सकते हैं इसको, इसमें मैंने अलग अलग चीजें मेंशन की है। ओके, आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत लुक्रेटिव करियर है, सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। यूपीएससी काफी बच्चों को पता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि यूपी इंग्लिश लिटरेचर साइकोलॉजी का बंदा ज्यादा अच्छे से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांच। यूपीएससी में पोस्ट कौन कौन से हैं, मैंने हाईएस्ट के हिसाब से मेंशन बनेंगे एमपीएससी करने के बाद। तो यूपीएससी करके आप नेशनल लेवल पे अगर राज करेंगे, तो एमपीएससी करने के बाद स्टेट लेवल पे बड़े बड़े पोजीशंस ले सकते हैं। ओके, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स जो है वहाँ कर सकते हैं अपने, ज्यादा करके बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट में एंट्रेंस लगता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी आपको एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन डिफेंस एकेडमी में आर्ट्स के ज्यादा बच्चे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज जनरली डिफेंस एकेडमी में उनको मेजरली जो फील्ड कंपल्सरी होता है डिफेंस सर्विसेज के लिए, लेकिन कुछ एक फील्ड ऐसी होती है डिफेंस के अंदर भी जिसके अंदर आर्ट्स के बच्चों को वो लोग लेते हैं। सोशल वर्क के लिए भी एंट्रेंस लगता है, और लॉ के लिए भी आपको एंट्रेंस है। ओके, और जितना अच्छा कॉलेज आप लेंगे मास मीडिया में या होटल मैनेजमेंट में, उतना आपको जो है वो प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जेवियर्स हो गया, हमारे मुंबई की अगर मैं बात करती हूँ तो जेवियर्स इज अ ब्रांड, सोफायाज इज अ ब्रांड, केसी कॉलेज, ये सारे जो है वो अच्छे कॉलेजेस में माने जाते हैं। ओके, डिप्लोमा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, there is network error. डिप्लोमा कर सकते हैं जर्नलिज्म में, लाइब्रेरी साइंस में, एडवर्टाइजिंग में, कमर्शियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, जाता है बैचलर्स की डिग्री मानी जाती है, बैचलर्स के इसके अंदर भी है। मिसकंसेप्शन है बहुत से लोगों को, अभी दिखाई दे रहा है नाजिया मैम? मैम दिख रहा है, यास्मीन मैडम नहीं आ रही है मैम दिख रहा है, लेकिन आपकी Am I आवाज audible? ज्यादा इंटरप्ट हो रही है। बहुत इंटरप्शन है आपकी आवाज में, बहुत सारी चीज मिस हो गई हमसे। We are not able to get all the things what you're talking. नहीं दिख रहा, इंटरप्शन आ रहा है मुझे। ये एक्चुअली कैसा है कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र से हैं, राइट, अलग अलग जगह से। अभी चैट देख पा रही हूँ मैं,
मैम यू आर I नॉट ऑडिबल। understand. अभी आ रही है आवाज? रुक रुक के आ रही है मैम, बहुत इंटरप्शन। ब्रेक होकर आ रही है मैम। एक्चुअली मैम ने लीव किया, अभी दोबारा जैसे आते हैं उनको होस्ट बनाता हूँ। आई थिंक फिर से ज्वाइन करेंगे। यस, शी जॉइंड अगेन। इस समय होस्ट कौन है अभी? हेलो मैम, मैम आपको बना दिया हूँ मैम। यू आर द होस्ट। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी? मैम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। यस यस। बैंक एंट्रेंस एग्जाम की स्लाइड दिखाई दे रही है? जी मैम। बैंक एंट्रेंस एग्जाम की स्लाइड, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन जी दिख रही है मैम। दिखाई दे रही है और सुनाई भी पड़ रही हूँ मैं, राइट? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। ठीक है, ओके, आई मूव ऑन। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे जो है वो बैंक एंट्रेंस के एग्जाम में जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर अगर आप जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या IPPS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज SBI, PO stands सर, SO stands for जो है, अगर आप entrance, उनका जो है वो प्रीलिम्स के you are a commerce graduate or a arts graduate or a science graduate, okay? तो SBI, हेलो मैडम नहीं है, मैडम ने ज्वाइन नहीं किया अभी। हो सकता है फिर से ज्वाइन करें, थोड़ा वेट करते हैं।
Ma'am, you now become host. Hello. Hello, Humaira ma'am. Yes. Now you become host. Yeah. Yes. स्लाइड दिख रही है मेरी बैंक एंट्रेंस के एग्जाम SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्लर्क टोटली इनऑडिबल सामने नहीं बैंक आवाज एंट्रेंस आ रहा है कैन यू रिपीट बैंक एंट्रेंस एग्जाम मैम बैंक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बच्चों को एक मिसकंसेप्शन ऐसे होता है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे जा सकते हैं लेकिन अगर उनके 3 लेवल के एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स मेंस एंड उनका जो इंटरव्यू लेवल होता है अगर आपने वो क्रैक किया तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मैटर करता है नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट ओके तो इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आपका जॉब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर SBI क्लर्क है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक सिलेक्शन करके एग्जाम होता है तो इसमें भी अलग अलग लेवल्स है प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप असिस्टेंट एग्जाम पास कर सकते हैं ग्रेड बी का एग्जाम इसके साल में हर एक बार एग्जाम्स निकलते ही निकलते हैं ओके फिर ये NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में भी आप जो है वो जा सकते हैं SBI का PO का एग्जाम मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया नेक्स्ट I'll move on to the slide ये बैंक के स्टूडेंट कॉलेजेस जो मुंबई में बहुत फेमस है आर्ट्स के लिए वो है सेंट जेवियर्स KJ सोमाया मिथिबाई कॉलेज SK सोमाया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सोफाया जय हिंद विल्सन एल्फिस्टन रूपरल एंड भवंस ये कुछ मैंने कॉलेजेस मेंशन किए हैं जो आर्ट्स के फील्ड के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हेलो ये आर्ट्स के टॉपिक में अगर कोई आपको ये है क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं तो फिर अपन आगे वाले स्लाइड पे जाएंगे अपने साइकोलॉजी की फील्ड में कौन कौन से ऑप्शन है मैम हेलो अगर NIS यास्मीन या मैम अगर ये क्लियर हो आपका डाउट तो अपन आगे वाले फील्ड पे जाएंगे क्या कोई डाउट है इस चीज को लेके मैम स्टिल आपकी आवाज है ना सेम वो गिटार पैटर्न में आवाज ब्रेक डाउन होके आ रही है इसे ना UPSC के बाद का भी जो मतलब है ना टोटली कुछ भी ऑडिबल नहीं था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हेलो आपकी आवाज बहुत धीमी आ
सुनाई दे रही हूँ? हेलो मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। To connect from mobile phone से मैं try करके मैम एक्चुअली सेम थिंग हैपन, जब भी आप बोल रहे हैं ना तो मैं गिटार पैटर्न में आवाज मोबाइल कट-कट फोन से होती मैं है। ट्राई कर रही हूँ। एक मिनट। हेलो, ये बेटर है क्या? Recording in progress. यस मैम, आवाज अच्छी आ रही थी अभी। तो मैं मोबाइल से मैंने एक्चुअली लॉगिन किया है। मैं इसी से बोलूं क्या बेटर है? यस मैम। मैम आपके दोनों डिवाइस आप ऑन है इसलिए लैपटॉप को हाँ म्यूट कर दीजिए। हाँ, आपके That's दोनों what I'm डिवाइस trying ऑन है। actually. Now it's better. Hello. मैम डबल आवाज आ रहा है बहुत दोनों डिवाइस। ये जो मेस्को वाली आईडी से आपने ज्वाइन किया ना, इसमें क्लियरिटी है। Okay, let it be. I'll just go on with this only. यही better है. हेलो। जी मैम, अभी आ रही है आवाज। मैम अभी आवाज हेलो।
ये बेटर है ना? हाँ ठीक है, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है बिकॉज आई थिंक दिस इज बेटर. Only host can anyone make me host, please? I think I am not the host now. Somebody else is the host. इस्लाम सर, आप कैसे होस्ट बन जा रहे हैं? Okay. मुझे भी पता नहीं मैम. हाँ ना, ये क्या मसले मसाइल है सीरियसली. जी आपको कर दिया हूँ मैम होस्ट. फर्स्ट इस्लाम सर ने ज्वाइन किया था शायद इसलिए. अच्छा मैम अभी कर दिया हूँ आपको. जी जी जी, आई अंडरस्टैंड सर. I'm just sharing. I'm trying to share my PPT. Just a minute, huh, madam? All of you. Just let me know whether you can see the screen or not. Screen पे कुछ दिख रहा है आपको? Screen दिखाई दे रही है? अभी तो नहीं. हाँ, just a minute. एक बार फिर से मैं कर लेती हूँ. Documents में I'll just go. One second. Documents में documents. अब यहाँ पे आवाज आ रही है तो पीपीटी नहीं आ रही है. Okay, so I have one more option. आवाज आपको ठीक से आ रही है ना? जी आवाज तो आ रही है अब क्लियर. हाँ, तो आई कैन डू. एक मिनट मैं ये पीपीटी शेयर कर लेती हूँ. अगर नहीं हुआ तो आई हैव वन मोर आइडिया. उसके थ्रू कर लेते हैं अपन. Because the work should go on. The work must go on. That's what I strongly believe in. क्योंकि यहाँ से ये शेयरिंग का समझ नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ से. डॉक्यूमेंट्स में गई. डॉक्यूमेंट्स में मैंने पीपीटी जो मेरा है. ओके, एक्सेलेंट. Now, can you see? नो मैम. नो मैम. नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि यहाँ से तो मैंने कर दिया है वो, लेकिन वो आपको तक नहीं आ रहा है. ये मसला हो रहा है. एक सेकेंड ना. Let me try once again. कौन स्क्रीन शेयर? हाँ, I have gone to screen share only. उसमें मैं गई हूँ और इसमें मुझे दिख रहा है. I can see the screen, but you guys are not able to see that. आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है. So we'll do something else. हेलो. Okay.
क्या स्लाइड दिख रही है अभी आपको मेरी? Yes, ma'am. हेलो, Yes, yes, दिखाई दे. दिख रही है मैम। हाँ तो ये मैं दिस इज वर्किंग आउट। अब बोलूंगी ऐसे, आपको स्क्रीन ऐसे दिखाई देगी, बेटर है? दिख रहा है? परफेक्ट। दिख रहा करियर्स है। इन कम्युनिटी साइकोलॉजी, हुमेरा शेख काउंसलर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, तो अभी अपन साइकोलॉजी पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे प्रेजेंटेशन के पहला पार्ट वाज रिलेटेड टू द फील्ड इन द आर्ट्स एंड द सेकंड पार्ट वाज रिलेटेड टू द फील्ड्स व्हिच आर देयर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या है, किस चीज का फील्ड है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? Study बोलेगा? of people behaviors study. Behavior. Okay, human behavior, that Human is the thought only thing process. which comes, sorry, thought processes, feelings. Okay, Mental abilities. excellent. Okay, काफी सही पकड़ा आपने। साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक psychology is called as incomplete science. It is based on certain abstract facts which are available in the field of psychology, and some of the things are also taken from the field of sociology also. So you can say that psychology is a scientific field, scientific study of mind and behavior. Okay, और psychology जो है वो Greek word से लिया गया है। Psyche का मतलब है life and logos means explanation. So basically it's a study of life explanation. Okay, very interesting study होता है psychology का, और इसमें आजकल बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है। फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का, बिकॉज एज यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन। जैसे कि हम भी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मी एज अ ट्रेनर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, you as a participant also not getting involved, so we are going to have a lot of physical issues. तो साइकोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा जरूरत, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, और बहुत सारे इनसिक्योरिटीज जो है लोगों के बढ़ रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज बढ़ रहे हैं। एंजाइटी इज अ बज़वर्ड दीज डेज। स्ट्रेस लेवल जो है लोगों का बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लोगों का कम हो रहा है, तो इसकी वजह से अगेन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स विल बी डिमांड। ओके, अगर आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो आपको कोई पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मैटर करेंगे। आपको सबसे ज्यादा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक जो आपका मैटर करेगा कि सेल्फ अवेयरनेस, कितना आप खुद को जान पा रहे हैं। इफ यू आर नॉट नोइंग योरसेल्फ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड अदर्स। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू बिकम अ परफेक्ट मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। सेकंड वन इज एक्टिव लिसनिंग। कहीं ना कहीं आ रहे हैं आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने, आपके इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा तगड़े होने चाहिए। interpersonal and communication plays a very important role in your personality when it comes to psychology. Then आप trustworthy होने चाहिए, because lot of people will be sharing lot of confidential information with you. For that you need to have a lot of secretive kind of skills, जहाँ पे आप अपने secrets जो है वो लोगों के साथ शेयर ना करें। ओके, ओपन माइंडेडनेस, जहाँ पे आप ओपन माइंड के साथ चीजों की बात, लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आपका एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होना चाहिए, और आपको सेंसिटिविटी होनी चाहिए डिफरेंट कल्चर्स को लेके, क्योंकि अगर आप नॉन जजमेंटल है तो ही आप अलग अलग लोगों के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरह के केस आ सकता है, तो आपका एक जजमेंट नहीं होना चाहिए उस बंदे को लेके। क्या कोई मुझे इसको बता पाएगा कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से क्या मुराद है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका? मतलब पहले से मैम फैसला कर लेना कोई चीज का कि ये बंदा कैसा है और कैसा। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत बार हम जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे रिलीजन में जो है वो सेम सेक्स जो है वो अलाउड नहीं है, राइट? तो अगर हमारे पास कोई लेस्बियन आता है क्लाइंट, या हमारे पास क्लाइंट आता है, सो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट पर्टिकुलर पर्सन? तो क्या हमारे पर्सनल जो जजमेंट है इस कम्युनिटी को लेके, क्या वो सामने आएगा, या फिर हम उनको जो है वो बहुत नॉन जजमेंट तौर पे उनको सब्जेक्टिव ना लेते हुए उनको ऑब्जेक्टिवली डील करेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हमारे हर कम्युनिटी को लेके, हर जेंडर को लेके कहीं ना कहीं बायसेस होते हैं, तो उन बायसेस को परे रख के
वो बंदे के साथ डील करना इज बेसिकली कॉल्ड एज योर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। सो भले आप सोशल वर्क फील्ड में हैं या साइकोलॉजी के फील्ड में हैं, आपको ये नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, समझ आ रहा है नाजिया मैम, यास्मीन मैम आपको? जी जी मैम। ओके, तो ये एक एटीट्यूड आप में होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास भी एज अ काउंसलर अलग अलग जेंडर के, अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, तो किस तरह ओपन माइंड के साथ हम उनको डील करेंगे, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके पास एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। You are not audible. है ऑब्जर्व भी आ रहा है। नेक्स्ट वन आप में पेशेंस, बिकॉज लिसनिंग कम्युनिकेशन में जितना पेशेंस होना चाहिए टू रिमेन काम, मैम, कि अगर प्रेशर कोई सिचुएशन। हाँ प्रॉपरली नॉट ऑडिबल मैम, ये पूरा ये जो प्रीवियस ये आपने लिया नहीं, नॉन जजमेंटल के बाद का कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये वाला एनालिटिकल ma'am. माइंड होना चाहिए आपका। एनालिटिकल माइंड से का मुराद यहाँ पे ये है कि आपको एनालिसिस स्किल्स होने चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको अलग अलग सिम्टम्स जो बंदा बता रहा है वो आपका ओवरलैप होएगा कोई ना कोई डिसऑर्डर के साथ में, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारे डिसऑर्डर है। जैसे कि आपने बहुत बारी सुना होगा, डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, आपने एंजाइटी डिसऑर्डर सुने होंगे, आपने फोबिया सुना होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर शायद किसी ने नहीं सुना होगा, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर नहीं सुना होगा। तो कई कई सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इस बंदे को कौन सा स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल माइंड। आपका ऑब्जर्वेशन और आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको सिंपैथाइज नहीं करना है, आपको एम्पैथाइज करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव, इट्स कॉल्ड एज एम्पैथी। डिफरेंस है सिंपैथी और एम्पैथी में। आई होप ऑल यू नो दैट। आप एम्पैथी और सिंपैथी में, यस मैम। हेलो, कैन यू एक्सप्लेन मैम? नेक्स्ट है हम, हाँ नेक्स्ट एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस पता करवा रहे हैं आपको? जी मिस, जी मैम, विद का एग्जाम्पल। मतलब होता है किसी ना किसी से, आप सामने वाले बंदे से आप हमदर्दी जता रहे हैं। हाँ, हमदर्दी जताना कि अरे आपको ये कैसे हो गया, ये तो आपको नहीं होना, ये तो बहुत कम लोगों को होता है। दिस इज बेसिकली कहीं ना कहीं हमदर्दी जता रहे हैं और उसको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि अरे आपके साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। ओके, आप सामने वाले है, अगर सामने वाला कि मुझे कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमको नहीं, हेलुसिनेशन, ओके, या ऐसा कोई बात वो कहा है जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं एक रोम है, ओके, और आई एम अ रोमन, और मैं इस रोम सिटी का या रोम कंट्री का किंग हूँ। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डिल्यूजन। ओके, उस बंदे से आप के उसके हुलिये से या उसके आपकी पूरी पर्सनालिटी से आपको समझ में आ रहा है कि ये बंदा रोम में जाना तो दूर, ये रोम के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो उसके बारे में बात कर रहा है, तो डिल्यूजन है। ओके, तो हमदर्दी जताने वाला बंदा बोलेगा अरे बेचारा कैसे, क्या तुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन एम्पैथी में आप बोलेंगे अच्छा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है, तो क्या आपको और क्या दिखाई दे रहा है और क्या समझ में आ रहा है, इसका रूट कहाँ पर है। तो एम्पैथी में आप उस बंदे को उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हो। आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि वो सही है या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका रूट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ आ रही है कि सामने वाले बंदे को उसके एंगल से समझने की कोशिश करना और उसकी गहराई में जाना कि प्रॉब्लम की शुरुआत हुई कहाँ से है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। समझ आया मैडम? जी जी मैम। ओके,
क्योंकि साइकोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे इंसान के अंदर, जिससे आपको बहुत ज्यादा ऐसे पिटी फील होगा उसके लिए कि अरे आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू. ओके, the moment you say I am feeling bad for you, that is a sympathy. The moment you say that yes, I am trying to understand you, I can relate to what you are saying, this is called as empathy. तो ये कीवर्ड है, I can relate to your feeling, I can understand your feeling, and I am feeling bad for you. तो the moment you say I am feeling bad for you, ये sympathy वाला स्टेटमेंट है. अगर आप बोलते हैं कि मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ या मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ, तो ये आपका जो है वो empathetic statement है. So that is the clear distinction between empathy and sympathy. आपको लोगों के हेल्प करने का जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. अब हम करियर्स में आते हैं. साइकोलॉजी की फील्ड में कौन कौन से करियर है? मेजर जो करियर साइकोलॉजी की फील्ड में अवेलेबल है अप्लाइड साइकोलॉजी में, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में. इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स होता है आर्ट्स में. क्लिनिकल ज्यादातर जो फील्ड है अबनॉर्मल पेशेंट्स के साथ डील करती है. काउंसलिंग में आप अबनॉर्मल लोगों के साथ डील नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जिसको बहुत ज्यादा बिहेवियरल इशू है. तो स्कूल काउंसलिंग हो गया, मैरिटल काउंसलिंग हो गया, उसके अलावा आपका फैमिली काउंसलिंग हो गया, और दूसरे सोशल इश्यूज को लेके काउंसलिंग हो गया, कॉन्फिडेंस वाला, ये सारा काउंसलिंग साइकोलॉजी में आएगा. ओके, और जैसे मैंने आपको बताया बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, फोबिया है, ये सारे क्लिनिकल साइकोलॉजी में आएंगे. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो एचआर के बंदे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी या इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में किस तरह से जो एम्प्लॉयज है उससे भरपूर काम निकलवाना है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. तो पूरे जो भी आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हाउसिंग फैसिलिटी देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है, या फिर आपको जो है वो बहुत सारे पर्क्स देती है, बहुत सारे बोनसेस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है. दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूजिंग द साइकोलॉजी ऑफ पीपल. क्योंकि अगर आप बंदे को मेंटली खुश रखेंगे तो वो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देगा. Does it make sense to you guys? Yes, Industrial psychology. Yes, ma'am. Yes, Okay. तो जितनी बड़ी कंपनियां, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में आपने गोदरेज कंपनी सुनी होगी, ओके, तो गोदरेज कंपनी में आप देखेंगे कि उन लोगों ने बड़े बड़े क्वार्टर्स दिए हुए हैं अपने स्टाफ को. आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है. आप उन लोगों ने गोदरेज का स्कूल भी खोल रखा है. ओके, आपको टाइम टू टाइम वो प्रमोशन देते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपका हेल्थ चेकअप होता रहेगा. तो बंदा साइकोलॉजिकली मेंटली एकदम सिक्योर है. तो अब जब बंदा मेंटली सिक्योर है, उसको किसी तरह का इनसिक्योरिटी नहीं है, डर नहीं है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा? बढ़िया होगा. ओके, तो दिस इज जो है वो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज आप ले लो, वो लोग लोगों की साइकोलॉजी को खुश करने का पूरा कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि बंदा अगर मेंटली, तो उसका they strongly believe if the person is satisfied, that will lead to production. ओके, सोशल साइकोलॉजी अगेन एक फील्ड है. तो जितने लोग एनजीओ वगैरह में काम करना चाहते आप काम करना चाहते हैं, तो सोशल मुंबई है. एमए स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब ये है, पहला साल आपको कॉमन रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. बीए कंपलसरी है साइकोलॉजी में, और फिर मास्टर्स लगेगा आपको इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. और ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेकंड ईयर में आपको कोई स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा एज पर योर इंटरेस्ट. अगर आप क्लिनिकल में जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका ज्यादातर जो काम है वो कहाँ पर होगा? हॉस्पिटल्स के एडिक्शन सेंटर्स में होगा, असाइलम सेंटर्स में होगा. जो हॉस्पिटल्स में असाइलम होता है, ऐसी जगहों पे आपका काम होगा जहाँ पे आपको जो है वो सीरियस मेंटल इलनेसेस के साथ डील करना पड़ेगा. Okay, comparatively counseling, industrial and social psychology is better if you are not a very strong person. Okay, SNDT यूनिवर्सिटी है मुंबई में, ये अगेन वो ऑफर कर रही है आपको ये सारे स्पेशलाइजेशन. अप्लाइड साइकोलॉजी मुंबई में एक टिस इंस्टीट्यूट है,
मुंबई के बाहर भी ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, इसमें भी वो लोग जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी एमए ऑफर कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में। नेशनल कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है बॉम्बे का, वहां भी एमए ऑफर कर रहे हैं ये लोग साइकोलॉजी में। मिथिबाई कॉलेज है, ये लोग इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं। जेवियर्स कॉलेज है मुंबई में जो बहुत फेमस है, यहाँ पे आपको एमए ऑफर कर रहे हैं लाइफ स्पैन काउंसलिंग साइकोलॉजी में, और केजे सोमैया में एमए साइकोलॉजी दे रहे हैं, विद्या विहार में ये कॉलेज है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में आऊंगी, डोंट वरी। आपकी जैसे मैंने बताया स्पेशलाइज्ड फील्ड एरियाज कौन कौन से साइकोलॉजी में, क्लिनिकल, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है, बहुत अपकमिंग फील्ड है। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता ही है। सोशल साइकोलॉजी, स्कूल काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, जिसमें आप लोग ज्यादातर एडिक्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कॉग्निटिव काम करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजी है जो मार्केटिंग वगैरह में जो जाना चाहते हैं। डिफेंस के अंदर भी बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी। साइकोमेट्रिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाते और बेचते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ स्टडीज जो है साइकोलॉजी के माध्यम से आप कर रहे हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, ओके। लेकिन ये सारे जो फील्ड्स मैंने मेंशन किए इसमें से कम फील्ड जो है हमारे इंडिया में अवेलेबल है, बाकी आपको अवेलेबल मिलेंगे अब्रॉड, ओके। बाहर की कंट्रीज में साइकोलॉजी का डिमांड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन सोसाइटी। यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रहा है आपको? हेलो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्टिसिपेंट्स है ना दिस थिंग। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अच्छी है इंडिया में? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी से मैंने बताया, फॉरेंसिक साइकोलॉजी मिलेंगी आपको। बेस्ट यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर कर रहा है न्यू दिल्ली में। अहमदनगर यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, सॉरी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी कॉलेज पुणे में है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इंडियन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, और निमहांस अगेन अ वेरी फेमस मेंटल हेल्थ कॉलेज बेंगलोर में है। कॉलेज भी है इनका, हॉस्पिटल भी है। तो ये सारे टॉप के कॉलेजेस है, टॉप की यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया जो आपको साइकोलॉजी ऑफर करते हैं। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन मैंने इतना इंटीरियर में मैं नहीं गई हूँ, ये मैंने मोटा मोटा बेस्ट कॉलेजेस निकाले हैं, ओके। अगर आप साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं इंडिया में तो आप हुमैरा मैम आप म्यूट हो गए। ठीक है, सुनाई दे रहा है अभी आपको? तो ये सारा स्कोप है आपको साइकोलॉजी की फील्ड में। अदर ऑप्शंस व्हिच यू कैन परस्यू आफ्टर साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी करके आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं, आप एमबीए एमएमएस कर सकते हैं एचआर मार्केटिंग में। यूपीएससी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कलेक्टर यूपीएससी, डेप्यूटी कलेक्टर एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, combined graduate level examination for various posts in ministry, departments and organization of government of India. B.Ed कर सकते हैं, नेट सेट क्लियर करके लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, आप MSW कर सकते हैं बीए साइकोलॉजी करके, मास मीडिया जर्नलिज्म कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। PhD, सॉरी नॉट PhD, PhD इन साइकोलॉजी जो है वो मुंबई में SIS कॉलेज में
जेवियर्स कॉलेज में, SNDT कॉलेज में, सोफायास में है, दिशा सेंटर, प्रफुल्लता सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी हेल्थ, ये सारे सेंटर्स है जो आपको अलग अलग लेवल पे जो है वो साइकोलॉजी के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं और साइकोलॉजी की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। बाहर अगर आप करना चाहते हैं तो टॉप जो है कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर साइकोलॉजी अब्रॉड में अगर आप करना चाह रहे हैं, MS होता है इन साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ साइंस बोलते हैं साइकोलॉजी में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ येल, कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और MIT। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस, MIT शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, US में है ये। तो ये सारे जो है वो अब्रॉड स्टडीज के लिए आपको MS अगर आपको साइकोलॉजी में करना है। The one person is, pronouncing it for me. Who's that? Massachusetts. Okay. Massachusetts. Okay. MIT जिसको शॉर्ट फॉर्म है, US में है ये। ये सारे टॉप के कॉलेजेस, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज आप बोल सकते हैं। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड तो वी ऑल नो। तो जितने भी साइकोलॉजी के इन्वेंशंस होते हैं, साइकियाट्री में इन्वेंशन होते हैं, दीज इन्वेंशंस हैपन फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज ओनली। मतलब इनके कहीं ना कहीं इनके जो स्पेशलिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बाहर आते हैं, वो लोग सारे मेजर इन्वेंशंस करते हैं। इनफैक्ट जो DSM है, डायग्नोस्टिक जो मैनुअल है, वो भी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही बना है। और साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे भी साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसका MSc साइकोलॉजी है जनरली। और ये सारी जो एक वेबसाइट मैंने मेंशन की है, जिस पे आप जो है वो स्टडी अब्रॉड shiksha.com, MS इन साइकोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड स्टडीज, ये सारा वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। साइकोलॉजी के बच्चे बाहर जाके भी स्टडीज कर सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट के थ्रू? GRE, IELTS, TOEFL and PTE। कोई मुझे बताएगा कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? एनीबडी कैन टेल मी? क्या आप लोग सर अपना आई थिंक ना, मैं भी यही क्वेश्चन आपसे पूछना थी। आई थिंक जब साइंस बैकग्राउंड से हम साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो वो साइकेट्री के अंडर हो जाता है। एंड व्हेन इट इज बैकग्राउंड, ये मेरा सोच था पहले, लेकिन नाउ नहीं मैडम, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू एक्चुअली स्पीकिंग, BA जो ये कॉन्सेप्ट है आर्ट साइकोलॉजी का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ मुंबई में ही है। अगर आप बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम मुंबई एंड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, बेटर बोले गया तो अच्छा है, महाराष्ट्र में एक्चुअली हम लोग BA और MA साइकोलॉजी है, लेकिन बाहर के जो अपने स्टेट्स है, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, दे हैव BSc इन साइकोलॉजी, दे कॉल इट BSc इन साइकोलॉजी एंड MSc इन साइकोलॉजी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है साइकियाट्री का। एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट अगर आपको बनना है, साइकियाट्रिस्ट, तो साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए MBBS का डिग्री। ओके, सो अ पर्सन हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू द पेशेंट्स or to the clients is basically called as psychiatrist, and psychiatrists need to have a full-fledged degree in the field of medicine. Okay, so you cannot become a psychiatrist unless and until you have a MBBS degree or a BAMS degree or BHMS degree, preferably MBBS. तो जिस तरह से MBBS के बाद आपका स्पेशलाइजेशन होता है, MD होता है ना, पीडियाट्रिशियन में या गायनोकोलॉजी में या फिर न्यूरो साइंस में, एनी अदर फील्ड फॉर दैट मैटर, उसी तरह से एक स्पेशलाइजेशन होता है साइकियाट्री में। तो साइकियाट्री में जो है वो बंदे को पूरा साइकोलॉजी का स्टडी करना पड़ता है। सो दिस फेलो
can practice medicine also to the patients. So जो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देते हैं, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन नॉट रेफर और आई कैन नॉट गिव मेडिकेशन टू अ पेशेंट, टू अ काउंसलर, टू अ क्लाइंट, बट अ साइकियाट्रिस्ट कैन. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. ये साइकोलॉजी के बंदे को, साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को या काउंसलर को ये राइट नहीं है कि वो मेडिसिन दे, लेकिन एक अगर साइकियाट्रिस्ट है तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है. Am I making myself clear to all? Yes. Okay. I really appreciate अगर आप सारे के सारे अपना जो है और वो एक वीडियो डिफरेंस मैं ऐड करूंगा प्लीज. मैडम, और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो. या श्योर. एक RCI भी होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो अगर आप MA साइकोलॉजी भी है या साइकोलॉजिस्ट भी है, तो आप अपना क्लिनिक जो होता है, मतलब काउंसलिंग सेंटर जो है ना, आप अपना ओपन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास में RCI का लाइसेंस नहीं है. और एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप क्लिनिक या हेलो जी मैम, ऑडियो बोलिए. हाँ, और एक्चुअली अगर आप अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, क्योंकि कैसा होता है कि आपको पूरे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपको अपना पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा. आपको जो है वो बहुत सारे टेस्ट्स बाय करने पड़ेंगे. सो इन अ वे, both ways, okay, in terms of license also, as sir said, and in terms of expense also, it's like a bit expensive as compared to you working for a hospital, or you working for a NGO, or you working for a psychological center. It's like working in a psychological center is always a better option as compared to working on your own. So until you are having a strong financial backup, and you think that you can give sufficient time and sufficient kind of resources to your patients, then only it makes sense to start your own clinic. Any other queries, students? मैं appreciate करूंगी अगर आप अपना वीडियो ऑन करके सारे के सारे दिखाई दे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने हैं. All the participants are there. I request all of you to please अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट करिए और थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कीजिए, so we can see all of you. Moin sir, Imtiaz ma'am, Imtiaz sir, Islam sir, Nazia ma'am. I cannot see Yasmin ma'am as if now. और कोई पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेरी है तो हमारे पास है, और अराउंड 20 मिनट है, 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, वी कैन आस्क, यू कैन क्लैरिफाई दोस क्वेरीज with regards to psychology or with regards to the field of arts. Ma'am, how can we identify someone कि someone ask, मतलब जैसे बच्चे को जाते हैं पूछने के लिए करियर्स के लिए क्या करना, तो उसके कुछ ज़ाब्ते क्या है कि जिससे हम मालूम कर सकें कि इन बच्चों की साइकोलॉजी क्या है समझने के लिए. एक्सेलेंट क्वेश्चन सर, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने. कैसा होता है कि जनरली देयर आर 2 वेज थ्रू व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट करियर काउंसलिंग, ओके, आप तो है 2 तरीके हैं. पहले तो आप जो है वो बच्चे से एक रैपो डेवलप करके उसका इंटरेस्ट लेवल आप जान सकते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड है विद रिगार्ड्स टू स्टडीज, ओके, उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके जो बैकडेटेड रिजल्ट्स है, उसके थ्रू आप उसका एक इंटेलिजेंस पता करा सकते हैं, अगर आप टेस्ट नहीं कंडक्ट करना चाह रहे हैं. तो एक तो है गुड रैपो, एंड यू नो टेल द पर्सन टू कम अप विद द बैकग्राउंड, ओके, रिजल्ट्स लेके आओ, उससे बातचीत करके आप उसका इंटरेस्ट भी निकल सकते हैं और उसके रिजल्ट के थ्रू उसका इंटेलिजेंस भी निकाल सकते हैं. लेकिन जनरली जो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है, एक प्रोफेशनल काउंसलर होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करता है.
और वो एप्टीट्यूड टेस्ट 3 लेवल पे कंडक्ट करता है। एक तो उसके इंटेलिजेंस का वो अंदाजा निकालता है टेस्ट देके, उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करता है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी चेक करता है, उसकी मैकेनिकल वर्बल एबिलिटी चेक करता है। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे आप उसका, इंटेलिजेंस का, उसके इंटरेस्ट का भी आप टेस्ट लेंगे। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे सेंटर्स पर्सनालिटी का भी टेस्ट लेते हैं और उनके जो सोशल स्किल्स है उसका भी टेस्ट लिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड के हिसाब से जो उसका रिजल्ट आता है, तो हमको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि वो बंदे का इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और उसकी सोशल अडेप्टेबिलिटी वी कॉल इट, कि वो सोसाइटी में किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में अडेप्ट करता है। तो ये एक तरीका है सर जिसके जरिए आप जो है वो बच्चे का एक ज़ाब्ता, जैसे आपने बोला, एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप बच्चे को इन डेप्थ जान सकते हैं, अगर आप पहले से वो बच्चे को नहीं जान पा रहे हैं। Okay, thank आई you, होप ma'am. आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो जो बंदा प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसके पास एमए का डिग्री है, साइकोलॉजी के टेस्ट ये बाय कर सकता है मार्केट से। वेरी करते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक टेस्ट खरीदना बेटर है, क्योंकि आप ये टेस्ट खुद से नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वगैरह लगेगी, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट अनलेस अनटिल यू हैविंग अ रिसर्च बैकग्राउंड। अगर आपने पीएचडी कर रखी है और आपका आरएनडी करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ही आप ये सारे टेस्ट वगैरह इन्वेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। एनी अदर क्वेश्चन? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है उनके कुछ नाम बता सकते हैं? डीबीडीए, डिफरेंशियल बैटरी ऑफ एबिलिटीज का टेस्ट है। इसके अलावा डीएटी अपन बोल सकते हैं। ये 2 टेस्ट जो है वो वाइडली यूज्ड करते हैं लोग। उसके अलावा भी वोकेशंस को लेके भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। ओके, कुछ टेस्ट गवर्नमेंट ने भी इन्वेंट किए हैं, बनाए हैं, वो टेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। 2 मोटे मोटे टेस्ट जो ज्यादा करके चलते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगी डीएटी। अगर आपका टारगेट पॉपुलेशन अच्छा है, यानी कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनका इंग्लिश वगैरह अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई विल रेकमेंड यू डीएटी। अगर आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं है, देन आई विल रेकमेंड यू डीबीडीए। ओके, अगर आप इंटेलिजेंस का टेस्ट करना चाहते हैं तो एक नॉन वर्बल टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, एसपीएम, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। Ma'am, how we can connect with you? I am available on phone also as a person. You can contact me through mail also. Whichever ways, you can take my contact number from sir. You can take my email ID from Contact sir. number or email address. Ha, I'm just writing it down in the chat box. Ma'am, if someone is not having psychology subject in 11th and 12th standard, they can pursue psychology, right? Like from Yes, that person can pursue. अगर आपका 11th 12th में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो अगर बच्चा समझो साइंस का है, so that person can also come in arts. बच्चा कॉमर्स का है तो भी आर्ट्स में आ सकता है, लेकिन आर्ट्स का बच्चा साइंस और कॉमर्स में नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात तो पक्का है क्या? ओके, तो अगर बच्चा साइंस बैकग्राउंड से आया है और उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है with no background of psychology, then two colleges allow them to get into psychology when that person is in first year of BA. No problem as such. Okay, लेकिन अगर एक बैकग्राउंड रहता है तो always they have an edge over people who have no background. लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, बच्चा अगर मेरिटोरियस है तो वो पहले साल की 2 किताबें भी मैनेज कर सकता है। और आजकल तो जो पूरा तरह से साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मुंबई में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है,
SIES बहुत फेमस कॉलेज है मुंबई का जो मटुंगा में है, वो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी दे रहा है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। सोफाया कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, दीज आर द कॉलेजेस हु आर ऑफरिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज। लेकिन आप इससे एकदम प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो बंदा इंटरेस्ट लेता है साइकोलॉजी में उसको अच्छा खासा नॉलेज आ सकता है फॉर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक प्रोफेशनल सेटअप में हो तो आपको लगेगा। Actually speaking, it really works with your children also, with your students also, with your family members also. It does wonders, trust me. Okay, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपने आप को एज अ पर्सन देखती हूँ, तो जिस तरह से मैं चीजों को लेके डील करती हूँ, या मैं जिस तरह से लोगों को लेके डील करती हूँ, या सिचुएशंस को लेके डील करती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज का जो मैंने पढ़ी है। ओके, तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो नॉन जजमेंटल होता है, चीजों को ऑब्जेक्टिवली लेता है। तो ट्रस्ट में जब आप ये साइकोलॉजी को पढ़ लेते हो तो आपको देखने का, आपका जो एक नजरिया होता है चीजों को देखने का, वो कंप्लीटली बदल जाता है। आप समझने लगते हो इंसानों को, आप जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो चीजों को, और आप चीजों को कंपैरेटिवली लाइट मोड में लेना चाहते हो एज कम्पेयर टू टेकिंग एवरीथिंग ऑन योर नर्व्स। आप समझ रहे हैं, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, और आप ज्यादा बोलने पे विश्वास नहीं करते हो, आप ज्यादा सुनने पे विश्वास करते हो। Are people are there with me? And always remember, a psychologist is a person, a counselor is a person who, it's fine अगर वो थोड़ा communication में weak हो रहा तो भी चलेगा, लेकिन listening उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, because lot of time people are paying you not for the suggestions but they are paying you for the listening. Okay, बहुत बार लोगों को सिर्फ चाहिए होता है कि कोई उनको सुने। It's okay if you're not able to give them solutions. It's okay if you're not able to give them recommendation. लेकिन अगर आप सुन भी लेते हो तो वो बंदे का आधा से ज्यादा जो एक वरी होता है, एक स्ट्रेस लेवल होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने नोट किया होगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर के पास जाने से ही आपकी आधी बीमारी कम हो जाती है। ओके, फिर बाद में जब वो दवा देता है तो आपकी आधी बीमारी कम होती है, बची खुशी बीमारी कम होती है। सो बेसिकली द डॉक्टर ऑल्सो शुड बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि डॉक्टर अपनी बातों से इंसान की आधी बीमारी कम कर सकता है। ओके ओके, तो लिसनिंग इज अ की। ओके, अगर आप कम बोल रहे हैं लेकिन सुन ज्यादा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना, एम्पैथी, आप जितना सुनेंगे, आप जितना समझेंगे, उतना उस बंदे के डेप्थ में आप जा पाएंगे। ओके, सो अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हैं या साइकोलॉजी को समझना चाह रहे हैं तो आप सामने वाले बंदे को मौका दीजिए बोलने का। हेलो, यस मैम। और कोई क्वेरी है आप लोगों की? नाजिया मैम और इम्तियाज सर? नो, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। हेलो मैम, रिलेटेड विद सिचुएशन हैंडलिंग, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए मतलब ऐसा आप सजेस्ट कर सकते हैं? ओके, हेलो मैम, यस, सिचुएशन हैंडलिंग जैसे आपने बताया, जैसे हम लोगों को नॉन जजमेंटल होना चाहिए इस चीजों के लिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि एक गुड लिसनर होना चाहिए। सो यस मैम, इसमें कुछ ऐसी बुक्स जो इसमें हमारी स्किल को और इम्प्रूव कर सके डे टू डे लाइफ में पढ़ने के लिए कुछ बुक्स वगैरह रेकमेंड अगर मैं थोड़ा सा इतना नहीं आपको इस बारे में गाइड कर पाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक मेल डालिए। ओके, मेल में मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँ, क्योंकि कैसा है कि अभी बहुत सारे, डेल कार्नेजी अगर आपने सुना होगा, डेल कार्नेजी का नाम सुना है आपने? डेल कार्नेजी एक बहुत ही फेमस ऑथर है। ओके, वो बहुत डेल कार्नेजी है, शिव खेरा, दीज आर गुड ऑथर्स। जिसकी आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंसाइट। चिकन सूप फॉर द सोल, ये 2-4 चीजें हैं। चिकन सूप फॉर द सोल आप याद रखिए। शिव खेरा की बुक्स आती है,
जो बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में होती है, चिकन फॉर द सोल में जो बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डेल कार्नेगी की जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे साइकोलॉजी को समझने में। और अगर आप एक रिलीजियस पर्सन है, सो आई वुड रेकमेंड यू टू रीड कुरान आल्सो विद कमेंट्री। अगर आप कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ के उसको कमेंट्री के साथ पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एंगल्स उसमें दिखाई देंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अपन साइकोलॉजी में यूज करते हैं, दे आर समवेयर डाउन द लाइन डिराइव्ड फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि हम बोलते हैं नाउमीदी कुफ्र है। Yes, ma'am. दिस इज द की फॉर व्हेन वी, अगर आप बोल रहे हैं कि आपको नाउमीद नहीं होना है, तो कहीं ना कहीं आप यही चीज बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओके, फेथ वर्सेस फियर। द मोमेंट यू हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, automatically your fear goes away. Okay, and the moment your fear goes away, all your phobias, all your anxiety issues, all your depression issues will go out of the window. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो Yes, बहुत ma'am. सारे Yes, ma'am. इस्लामिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, that also really goes well with psychology. Okay, ये मैंने खुद पढ़ा है, that's why I can say with lot of confidence. हेलो, सो अगर आप दीनी किताबों के अलावा जो है वो दुनियावी किताबें पढ़ना चाह रहे हैं, तो आई वुड रेकमेंड यू डेल कार्नेगी, शिव खेरा एंड चिकन सूप फॉर द सोल। बहुत सारे है उसका, चिकन सूप फॉर द पेरेंट्स, चिकन सूप फॉर द सोल, उसमें पूरी सीरीज है। मैम, एक करियर काउंसलिंग डिसाइड करने के लिए एक स्टूडेंट के लिए कितने सेशन या कितना टाइम लगता है? 1 day, 2 day, 1 week? How much time Actually, it a will very, take? very relevant question as per the course which you are into. Okay, actually speaking, I being a career counselor, I being a psychologist from past 20 years, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो एक सोचने का ढंग है बहुत ज्यादा चेंज होता है, right from 8th standard to 10th standard to 12th standard to graduation. I understand मैंने a lot बताया of कि changes are there. So lot of what is the right changes time also? आते हैं उसमें। हाँ, ये इसलिए मैं पहले मैं ये क्लियर कर लूं कि चेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप सही समय इन 10th, ये बहुत अच्छा समय है जब हम बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उसको बाबा मेडिकल में जाना है, तो हम उसको स्टार्टिंग से बोल सकते हैं कि, या फिर यूपीएससी आईएएस वगैरह बोलता है वो, तो हम 8th स्टैंडर्ड से उसको बोल सकते हैं कि यू नीड टू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। अगर यूपीएससी का बच्चा बनना चाह रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं तो 8th स्टैंडर्ड से एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, अलॉन्ग विथ योर स्टेट बोर्ड। अलॉन्ग विथ योर स्टेट बोर्ड, अगर नीट पढ़ना चाह रहा है तो स्टेट बोर्ड के साथ ही तो क्या स्टार्ट कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो स्टार्ट कर दे एनसीईआरटी का। आईआईटी में जाना चाह रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ स्टार्ट कर दे एनसीईआरटी का अलॉन्ग विथ स्टेट बोर्ड। ओके, सो 8, 9, 10 these are the ideal ages या ideal standards for guiding the children about the career. और जहाँ तक सेटिंग्स का सवाल है, मोटा मोटा अगर जनरली 2 या 3 सेटिंग काफी होते हैं। ओके, 3 सेटिंग में बच्चे को हम अंदाजा दे सकते हैं। अगर टेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो अगेन इट बिकम्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाता है, तो 2 या 3 सेटिंग में आपका काम हो जाना चाहिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रैपो डेवलपमेंट। जितना आप बच्चे से रैपो डेवलप करेंगे, जितना आप उसको प्रोब करेंगे, उतना आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगा बच्चे के पास से। एंड टेक पेरेंट्स आल्सो अलोंग विद द चाइल्ड, बिकॉज पेरेंट काउंसलिंग इज आल्सो मस्ट। Okay, ma'am. Thank you. ओके, तो अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो फिर ऑलमोस्ट अपन 50 तक आ गए हैं। अपना 9 से 11 का सेशन था। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज नहीं है तो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। अपना ईमेल When we आईडी can भी शेयर connect कर with देती you? हूँ। Means what is the time? मॉर्निंग में 10 to 12 एंड आफ्टरनून में 12 to 2, मंडे टू फ्राइडे प्रेफरेबली। Saturday, Sunday, I generally don't take outside calls.
ईमेल आईडी मैं अपना शेयर कर रही हूँ, पर्सनल वाला। तो आपको कोई क्वेरी है आपको तो आप उस पर भी मैं दोनों आईडी शेयर करती हूँ, मेरा ऑफिस का भी और मेरा पर्सनल भी। और अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। You can always share your feedback so that I can also improve on my this thing skills. Chats में आप अपना फीडबैक डाल सकते हैं। I recommend all of you जो भी प्रेजेंट है प्लीज अपना फीडबैक डाल दीजिए ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए about the session. पीपीटी को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके, कम्युनिकेशन को लेके। मैम आज टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत था, so it was I very understand. disturbing. So the feedback will be not right at this time. Okay. Maybe the recording, we'll see how check it is. Then we can give Okay. Okay. No problem. No, ma'am, but overall it's awesome related to psychology and to read someone with his personality. One of the important, my favorite, because I have one problem always with me that I'm unable to read the people's. So with Okay. this, Okay. yeah, so this will help me, ma'am. Yeah. Yeah. Surely. Surely. Okay, thank you. Thank you. My pleasure. Okay, and extremely sorry for the inconvenience caused क्योंकि मैं डटी हुई थी 9 से 11, लेकिन थोड़ा technical issues, I really can't help it because I was trying my level best. Though I was struggling, I was trying my level best to convey information to you. Yes, ma'am, we understand. Thank you very much. And it Thank was you very nice information. Like you have a huge amount of information you have given us. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. I'm done. मोइन कुरैशी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? Okay, so I am you're Moin done. Qureshi. Oh, I'm so sorry. So Moin Qureshi, Carol Islam, and Nazia. So I think I shall leave the session. Leave करना है या आगे कुछ बोलना है आपको ऐड करना है? Okay, ma'am, you can leave or we can also. Okay, Islam sir. Okay, Nazia madam, anything to add? Ma'am, in chat box I've written. You told me that in chat box I can write. So I have written in chat box. Oh, great, great. I'll just go to it for a second. Huh? Ma'am, although there was a lot of disturbance, but the session was extremely enriching. Okay, thank you so much for the kind words. It means a lot. Jazakallah khair, ma'am. Yeah, thanks a lot. Jazakallah. Thing also, वो जो आपकी PPT Stay है वो blessed. आप share कर सकते हैं? Yeah, sure. I'll share Hello, that ma'am. with Esad sir. Okay. Okay. Anytime, anything from my side, if I can be of any help to you, I'm just a call away. And you also have been a wonderful audience. I really appreciate the kind of commitment you guys are showing towards the field of psychology. I, being a psychologist, I'm really thankful to all of you. God bless you all and stay blessed. Bye. Okay, thank you, Jazakallah. That is.